Hi students, today we will discuss exercise and question answer chapter 3, two stories about flying. First story is completed with exercise and now we will discuss part 2, the black aeroplane. So let's start the video. First of all we will discuss phrases and idioms. In this chapter only one phrase and idioms. Look forward to it means होता है wait eagerly. ठीक है, पहले जिसके फ्रेज एंड इडियम्स वो हम कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने पूरा नोटबुक में लिखा होगा। तो इसमें सिर्फ दो ही हैं फ्रेज एंड इडियम्स। लुक फॉरवर्ड टू इट मीन्स वेट एगरली एंड लुक फॉर इट मीन्स फाइंड। अब नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज रिस्क? वाई डज द नैरेटर टेक इट? कि नैरेटर है वो क्या रिस्क लेता है। हम लोगों ने देखा कि वो उसका ओल्ड डेकोटा है वो अपने जो पाथ है उससे कई बादलों में है वो गुम हो जाता है। तो देखते हैं वो क्या रिस्क लेते हैं। आंसर है हंस स्ट्रोम was brewing up and the author was keen to reach his home to spend his holiday with his family, so he decided to fly through the storm as he did not want to miss the chance to meet his family at breakfast. वो नहीं चाहते थे कि वो अपना हॉलीडे स्पेंड करना चाहते थे अपनी फैमिली के साथ, और वो ये नहीं चाहते थे कि वो ये चांस मिस करे क्योंकि उनको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो अपनी फैमिली के साथ ही करना था। Thus he took the risk even when the visibility was almost zero in the storm. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द नैरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्ट्रोम। अब उनका एक्सपीरियंस है वो बताना है। आंसर है एज द पायलट ऑथर इंटर्ड द स्ट्रोम हिज a plane started jumping and twisting. He could not see anything outside the plane as it was black. When he looked at compass and other instruments, they had stopped to function due to storm. It was a terrible and fearsome experience for him. The fuel tank was almost empty and he could not fly more than 10 minutes. Then he saw another black aeroplane by his side and the pilot of the plane signaled him to follow. It was surprise for the narrator as the other black aeroplane was having no lights on its wing. He followed it without any choice and landed safely on the runway. ठीक है, ये पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरह से उसको परेशानी हो रही थी, फिर किसी एरोप्लेन ने उसकी हेल्प की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? Answer है after landing the narrator was not sorry to walk away from the old Dakota because he had a horrific and scary experience flying the aeroplane. He was very happy that he had landed the plane safely. That is why he was not sorry to walk away. Instead, he wanted to know where he was and who the other pilot was. वो थोड़ा डर भी गया था और अपना एक्सपीरियंस उसने जब वो प्लेन से नीचे आया तो वो हैप्पी था और वो उसने सॉरी भी फील नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नैरेटर स्ट्रेंजली। हम लोगों ने देखा कि जैसे ही वो नीचे उतरते तो उस एक वुमेन से पूछते हैं तो वो उसको स्ट्रेंजली देखती है। तो आंसर है द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर looked at the narrator strangely because the narrator asked him about the black aeroplane and she saw no one except the narrator's plane in the sky during the storm. कि इतने बड़े तूफान में सिवाय नरेटर के प्लेन के सिवा दूसरा कोई प्लेन नहीं था, इसीलिए वो स्ट्रेंजफुल हो गई थी। Even the reader, not reader, it is radar. Radar showed only the narrator's plane that night in the sky. क्वेश्चन नंबर 5 है हु डू यू थिंक हेल्प द नैरेटर टू रीच सेफली? डिस्कस दिस योरसेल्फ। ये तुम्हें अपने आप ही करना है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से अबाउट द अननोन पायलट हु हेल्प द नैरेटर, बट प्रॉबली इट वॉज द नैरेटर हिमसेल्फ दैट हेल्प हिम टू ओवरकम द फियर इन द स्टॉर्म एज नो अदर प्लेन who seen in the radar except the narrator's Dakota plane. In the fearsome situation he might have been very difficult या फिर hallucinantly. He himself was a good pilot and brave enough with help himself land safely.
हेलुनेशन मीन्स होता है थोड़ा भ्रम पैदा करना, होता है ना, काफ़ी बार हमारे आंखों के सामने जैसे कि कुछ मिस्टीरियस होता है, भ्रम पैदा हो जाता है, उसको हेलुनेशन बोला जाता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस रेक्टिफाई द एरर। रेक्टिफाई द एरर, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें एरर दिया होगा और उसी में करेक्शन लिखनी, सामने करेक्शन दिया होगा। काफ़ी बार ये होता है कि जहाँ पे एरर नहीं होगा वहाँ को आपको सामने डैश भी नहीं दिया होगा, तो इसीलिए जैसे फर्स्ट ही वॉज बिसाइड द सी नाउ, तो यहाँ पे बिसाइड एरर है क्योंकि यहाँ पे आएगा नियर, हमने लेसन भी पढ़ा था। टू फ्लाई स्ट्रेट ओवर इट फैसिंग, टू फ्लाई यहाँ पे फ्लाइंग हो जाएगा। स्ट्रेट आउट ऑन द ओशियन, फुल स्टॉप, ही ऑन की जगह आ जाएगा ओवर द ओशियन की, क्योंकि वो कहाँ पे फ्लाई कर रहा था, ओशियन के ऊपर। साई वॉस्ट ग्रीन सी अंडर, अंडर की जगह क्या आएगा, बीनेथ, नीचे। हिम विद हिज लिटल रीस्ट मूविंग, यहाँ पे नो एरर। ओवर इट एंड ही टर्न्स हिज, तो टर्न्स की जगह आएगा टर्न्ड, कि वो पास्ट में था, मुड़ चुका था, बीक साइडवे। सेकंड नंबर की यहाँ पे एक्सरसाइज है। सो होम हेल्प मी टू अराइव, होम का आएगा हु। देयर सेफली विदाउट ए कंपास, देयर, तो यहाँ पे THERE वाला देयर आएगा। और ए रेडियो एंड विद एनी, विद के साथ, विद नहीं, विद क्या है, एरर, विदाउट आएगा। मोर फ्यूल इन द टैंक्स, नो एरर इन दिस लाइन। हु वॉज द पायलट, ओवर, ओवर की जगह ओवर यह है एरर, यहाँ पे करेक्शन है ऑन। स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, फ्लाई एरर है, यहाँ पे फ्लाइंग करेक्शन है। इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, क्वेश्चन मार्क, नो एरर इन दिस लाइन। ओके स्टूडेंट्स, ऑल एक्सरसाइज राइट इन योर नोटबुक। थैंक यू।